Sir, shall we start up with the question and answer session? एक सेकंड, आप लाइव हो गए? ऋतु आर वी लाइव? Yes, start, Madam Vinita. You can reintroduce the subject and start. Just reintroduce the subject. So we are having a seminar with ARSD College and Heart Care Foundation of India, and the subject is question answer Sir, session shall we on start vitamin D, its importance and deficiencies. This half an hour we will devote to understanding more about the queries faced by the people. Vinita Tuliji to kindly take up the questions and start the discussion, the panel discussion. Sure, sir. Thank you, sir, for such an excellent and valuable session. It was indeed a thought-provoking session. Today we are having Padam Shri Dr. K.K. Agarwal ji. So we are starting up with the question and answers. Sir, we have first question from Anamika Rohila. Sir, kids को vitamin D कैसे और कितनी दें? See, kids को चाहे वो बच्चा हो, starting from any age, vitamin D is required. The only difference is the first year when you need 400 units. Otherwise, we need to give it to everybody. Okay, sir. Thank you, sir. Next question, sir, we have from Sonali Datta. Sir, what are the repercussions of taking vitamin D supplements or tablets for those who don't get sun exposure? So if I come back to the recommended intake of vitamin D is 400 IU for infants, which I have said already. And then this is up to 1,600 to 1,000 up to the age of 18. And after that, it is the adult dose, which we give it 2,000 units. But in India, we are always giving more than the requirement with that. Uske saath mein. And the vitamin D status in healthy children, the levels are not very well, but they are available with the pediatricians. कितनी चाहिए? हम लोग 20 और 40 का लेके चलते हैं. And क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम ब्रेस्ट फीडिंग वाले बेबी को भी विटामिन डी देते हैं? Yes, we give them. Exclusively breastfed infants को भी विटामिन डी दिया जाता है. Yes, what was the question? So it was, sir, what are the repercussions of taking vitamin D supplements or tablets for those who don't get sun exposure? No, you have to take 60,000 units every month. That's a requirement. You have to take जो लोगों को sun exposure नहीं, आज की डेट में तो जैसे हम लोग तो हर महीने विटामिन डी 60,000 units लेते हैं. Irrespective whether we get a sunlight or not. 60,000 per month keeps you away from vitamin D deficiency. ऊपर से sunlight जो मिल जाए वो मिल जाए. Thank you, sir, for valuable suggestion. Next question we have from Dr. Raghavendra. Sir, my vitamin D level is 17. What should I do? So I say normally if it is less than 10, then we give you an intensive protocol. But if it is less than 20, you can straight away start with 60,000 units per month. Automatically ये 20 से ऊपर हो जाएगा. Some people will say take 60,000 weekly and then you shift for 8 weeks and then you shift it to 60,000 monthly. वो person to person depend करेगा. अगर आपको कोई symptoms नहीं हैं, then it's okay. Now I want to tell you one simple story that is called osteomalacia. Is also a condition where vitamin D deficiency can also cause osteomalacia. उसमें क्या होता है कि इससे कॉल्ड है सास बहू की लड़ाई. What is सास बहू की लड़ाई? एक लड़की को घर में बंद करके रखा जाता है, उसको विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाती है, सडनली उसकी शादी हो जाती है, वो घर में आती है, उसे विटामिन डी की डेफिशिएंसी से ऑस्टियोमलेशिया होता है, उसको दर्द होते हैं. सास बोलती है काम करो, वो कहती है मुझे दर्द हो रहा है, तो सास लड़ाई लड़ती है, तू बहाने मार रही है. वो बहाने नहीं मार रही है, इसे हम टिपिकल सास बहू की लड़ाई बोलते हैं. कभी सास बोलती है कि मेरे को दर्द हो रहा है, कभी बहू बोलती है मेरे को दर्द हो रहा है. टेक इट फॉर ग्रांटेड वो विटामिन डी डेफिशिएंसी है.
इन लोगों को 6 हफ्ते अगर रोज 8 हफ्ते अगर आप हफ्ते में एक बार 60,000 यूनिट्स दे दो तो इमीडिएटली उनकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी खत्म हो जाती है. दिस इज कॉल्ड टिपिकल सास बहू का विटामिन डी डेफिशिएंसी. Thank you, sir. So next question we have from Dr. And Dileep. also remember that majority of the patients with serum vitamin D between 12 and 20 will remain asymptomatic. They will be remain asymptomatic. जिनका 12 और 20 के नीचे निकलता है उनको symptoms नहीं होते. Thank you, sir. Next question we have from Dr. Dileep. Sir, my younger brother is suffering from severe depression for around 4 months. His treatment is going on. He has gone through all the tests as prescribed by neuropsychiatrists such as brain MRI scan, psychometric test, complete hemogram test, KFT, lithium, thyroid profile test till now. In spite of all these efforts, he is not so well. Sir, what to do? देखिए, नंबर 1 है इसकी आपने बोला है सारे टेस्ट हुए हैं, डी तो कराया ही नहीं आपने, ये तो नहीं कह सकते कि सारे टेस्ट हुए हैं. सो यू विल हैव टू फाइंड आउट द ट्रिगर. डिप्रेशन का ट्रिगर हमारे को चाहिए. वन ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन इज लाइट. वन ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन इज सनलाइट. या तो घर में लाइट बहुत कर दो या सनलाइट में ले जाके बिठाओ. तो सबसे पहला तो ट्रीटमेंट डिप्रेशन का यही है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो नहीं है. दूसरा, थायराइड का रोल तो नहीं है, वो आपने टेस्ट करा लिया थायराइड का, लेकिन विटामिन डी का तो कंप्लीट करिए. वैसे भी अगर आप डिप्रेशन के पेशेंट को सनलाइट में डाल देते हैं उसके अंदर में उसका डिप्रेशन कम हो जाता है. तीसरा, डिप्रेशन के पेशेंट में हम सेरोटोनिन लेवल को इंक्रीज करते हैं. जितनी भी डिप्रेशन की दवाइयां हैं वो सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाती हैं और सेरोटोनिन लेवल धूप से भी इसका ताल्लुकात है. सो आप डिप्रेशन की दवाइयां अगर देते हैं तो लंबी भी चल सकती हैं, धूप में साथ में बिठाइए. थर्ड इज काउंसलिंग. कि कारण क्या है डिप्रेशन का. जब तक आप उस कारण के रूट कॉज में नहीं जाएंगे तो आपको पता नहीं लगेगा. मैं डिप्रेशन के साथ में एंजाइटी को जोड़ने के लिए 3 एग्जांपल्स लेता. पहला एग्जांपल है कि जब धृतराष्ट्र को रात को नींद नहीं आ रही थी उसने विदुर को बुलाया और विदुर को उसने बोला मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं क्या करूं. संजय हमारा मैसेज लेकर गया है, कल पता नहीं क्या मैसेज लेकर आएगा. तो विदुर ने एक विदुर नीति जो है उसका जो चैप्टर है इट स्टार्ट्स कि नींद ना आने के कई सारे कारण हैं. सबसे पहले अगर आपने कोई चोरी करी है यू विल गो इनटू डिप्रेशन. अगर आपने चोरी करी है और कन्फेस नहीं किया तो वो अंदर चला जाएगा, आपके अंदर में आपने दबा के रखा हुआ है इस गिल्ट को, दैट विल एंड अप इनटू डिप्रेशन. नंबर 2, आपको पैशन है, आपको कोई ऐसा ऐब है जो अभी आप कर नहीं पा रहे हो, आपको कोई एडिक्शन है जो आप एडिक्शन को बाहर नहीं निकाल पा रहे हो, यू विल गो इनटू डिप्रेशन. नंबर 3, आपकी पैसों का नुकसान हुआ है, आपकी नैया डूब गई है, आपके पैसे चले गए हैं, यू आर नाउ इन ए डेट, आपके पास खाने पीने का पैसा नहीं है. नंबर 4, आपकी इज्जत चली गई है, किसी ने आपकी इंसल्ट कर दी है या किसी ने आपकी इज्जत खराब कर दी है. और 5वां, आपको डर लग रहा है कि कोई मेरे से स्ट्रॉन्ग मेरी जिंदगी में आ गया है. ये 5 कारण अगर हमने ढूंढ लिए तो डिप्रेशन का कारण ढूंढ लिया. डिप्रेशन के साथ में जो एंजाइटी होती है, छठा कारण आपको नहीं मिलेगा. या तो कोई ऐसा गिल्ट है जो आपको लग रहा है गलत है और आपको लग रहा है कि वो गलत था और गलत नहीं था, अलग था. दूसरा, आपको कोई ऐसा एडिक्शन है जो आप पूरा नहीं कर पा रहे हो, कंपल्सिव न्यूरोसिस है, आपको एक कंपल्शन है किसी चीज करने की जो कोई चीज आपको सोच रही है. तीसरा, आपका नुकसान हुआ है या धन का या इज्जत का. और 5वां, आपके ऊपर में डर लग रहा है आपको किसी से कि वो मुझे मार डालेगा. ये 5 कारण डिप्रेशन के होते हैं. इसी तरीके का डिप्रेशन जिसे हम बोलते हैं डिस्पैशन, अर्जुन को आया था. अर्जुन को क्या डिस्पैशन था, उसको डाउट था कि लड़ूं कि नहीं लड़ूं. तो अर्जुन ने चैप्टर 1 में कृष्ण से कहा
मेरे पैर लड़खड़ा रहे हैं, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मेरे हाथ से धनुष छूटता जा रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया मैं क्या करूं, मुझे ऐसा लगता है सब कुछ गलत ही होगा, मुझे कुछ पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा. That is also a depression with anxiety, with acute panic reaction. Doubt, लड़ूं कि नहीं लड़ूं. उसके बाद में राम जी 16 साल की उम्र में जब इंटर्नशिप करके वापस आए तो ही वेंट इनटू एक्यूट डिस्पेशन कि दुनिया में और थ्योरी और प्रैक्टिकल में तो पूरा फर्क है. एंड दैट एक्यूट डिस्पेशन, द डायलॉग ऑफ दैट एक्यूट डिप्रेशन बिकेम योगा वशिष्ठा. डिस्पेशन ऑफ अर्जुन बिकेम भगवद गीता. That's how, and that became Vidur Niti. तीन किताबें हैं, विदुर नीति, योगा वशिष्ठा एंड भगवद गीता, which talks about how to manage depression. डिप्रेशन का आंसर एक दिन में नहीं होता, 18 बार आपको बार बार बात करनी पड़ती है. भगवद गीता के 18 चैप्टर्स हैं. पहले चैप्टर में अर्जुन बोलता गया, कृष्ण ने मुंह नहीं खोला. दूसरे में जब कृष्ण ने मुंह खोला तो इतना खोला कि अर्जुन कंफ्यूज हो गया. तीसरे लेके 17वें तक डराया भी, धमकाया भी, पुचकारा भी और एक एक चीज का आंसर दिया. और 18वें में रिवाइज भी कराया और तब जाके अर्जुन का डिप्रेशन खत्म हुआ एंड ही वाज एबल टू टेक ए शेयर डिसीजन. सो डिप्रेशन का इलाज सिर्फ विटामिन डी से नहीं होगा, सिर्फ दवाइयों से नहीं होगा, उसके लिए आपको बार बार बात करनी पड़ेगी. अर्जुन के डिप्रेशन को बैटल फील्ड में रिमूव किया था, वहां धूप आ रही थी. तो इसका मतलब है 18 दिन तक कृष्ण ने अर्जुन को धूप के अंदर में उसने उसकी बात करी, तब जाके उसका डिप्रेशन खत्म हुआ. बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ग्रेट एग्जांपल्स के थ्रू आपने ये बात बहुत स्पष्ट की है सभी को. सर नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फ्रॉम डॉक्टर राजकुमार जी. सर आजकल हर किसी के घुटनों में दर्द रहता है, वो शायद विटामिन डी की कमी से ही होता है. उस कमी को हम कैसे दूर कर सकते हैं, क्योंकि घर में तो हम धूप ले सकते हैं बट जब हम ऑफिस में होते हैं तो 10 to 12 के बीच में या तो हम ऑफिस में धूप लें और अगर नहीं ले पा रहे हैं तो उस चीज को कैसे हम सॉर्ट आउट करें. I still say that this is what I do because it is impossible to have sunlight. So supplement as on today is the best answer. 60,000 यूनिट छोटा सा पैकेट दूध में डाला, महीने में एक बार ले लिया. And it's not costly also. Thank you sir. Next question, again the same question from Rubia Noor also. Sir मेगा सिटीज में बहुत कंजेस्टेड एरियाज होते हैं, वहाँ धूप नहीं आती है, तो उनको विटामिन डी कैसे मिल सकता है? आज की डेट में इतना विटामिन डी जो फूड सप्लीमेंट्स आ रहे हैं, द सप्लीमेंट 60,000 यूनिट इज मच चीपर देन 45 फूड्स. सो धूप में जितना बैठ सकते हो बैठो, बाकी आप सप्लीमेंट से कवर करो. Sure sir. Next question from Harshvardhan. Sir, do old people need extra vitamins from a normal adult? No, same vitamin. They don't. I think it other way around. क्या बड़े लोगों को विटामिन डी की डोज कम कर देनी चाहिए? आंसर इज नो. उनको उतना ही लेना चाहिए जितने जवानों को ले रहे हैं. Sure sir. Dr. Manika Jain. Sir, what does vitamin D25 hydroxy serum of 24.3 indicate? 24 और 40 के बीच में है, दैट्स ओके. दिस इज व्हाट आई सेड. विटामिन D3 आपका जो वैल्यू है 10 से कम है तो ये आपको एक्यूट मैनेजमेंट, 10 से 20 है तो सिंपल मैनेजमेंट, और 20 और 40 के बीच में है तो वो नॉर्मल है. 24 means it is more than 20 and less than 40. It's okay. Maintain it at that time. But yes, अगर आपको कोविड हो जाता है तो उस टाइम पे हम हाई डोज देने की ऐसी थ्योरी है. Sure sir. Dr. Neeraj, at what time sun provides the vitamin D? I said सूर्य उपनिषद विटामिन, हमारे मेडिकल साइंस इसके बारे में 2 टाइप में डिवाइडेड है. हमारे वाले दोपहर वाले को ज्यादा प्रेफर करते हैं कि 10 बजे के आसपास का सनलाइट लो, लेकिन शास्त्र हमारे कहते हैं दिन में 3 बार कोई भी लिया तो चलेगा, सूर्य उदय, सूर्य अस्त और 10 और 12 बजे के बीच में. Thank you sir. So next question from Dr. Ifat. Sir, my vitamin level is 15. I'm taking 60,000 IU per week. Do I need to check the level of vitamin D? If yes, No. then what is the duration? एक बार आपने चेक कर लिया, दोबारा करने की जरूरत नहीं है. आप 60,000 यूनिट्स पर वीक 8 हफ्ते के लिए लीजिए, उसके बाद में लाइफ लॉन्ग पर मंथ चलने दीजिए. आपको दोबारा चेक कराने की जरूरत नहीं है.
हम तो लोगों को वैसे भी कहते हैं कि अगर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बिना चेक कराए 60,000 यूनिट्स पर मंथ लेते जाओ. Thank you, sir. Next question from Dr. Sudhanshu. Sir, in these times, it's extremely difficult to get sun rays during quarantine period, as you have also mentioned. I would like to know substitutes for sun rays, if any. सब्स्टिट्यूट तो सप्लीमेंट ही है, बट आज की डेट में भी मैं यही कहता हूं कि कोशिश करो पार्क में जाओ जहां सनलाइट हो. आज की डेट में तो आसान है, होम वर्क हो रहा है घर पे, 1 घंटे का गैप निकल के आप बाहर जाके गार्डन में जहाँ धूप आ रही है वहां बैठ के खाना खाओ. आज की डेट में तो बेस्ट टाइम है सनलाइट लेने का. मैंने भी कम होगा, अभी अनम्यूट कर दिया है मैंने. ठीक है, आप बाहर जाके खाना खाइए. जितना आप बाहर बैठेंगे उतना सेहत के लिए आज की डेट में अच्छा. Sure, sir. Next question we have from Dr. Kapil. Respected sir, if we want to run a RT-PCR test, where we should do in Delhi so that the report is valid across states, and how long it takes to generate the report? RT-PCR टेस्ट जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है वो दिल्ली में मल्टीपल लैब्स आर अवेलेबल. यू गो टू द नेट, ICMR की पूरी लिस्ट है जहाँ पे आप जाके टेस्ट करा सकते हो. वो आपका नाक का और मुंह का सैंपल लेंगे. इसकी रिपोर्ट आपको सुबह सैंपल देंगे तो शाम तक मिल जानी चाहिए. आप याद रखिए, आप वायरस नहीं चेक कर रहे. Somebody should remember, we are not checking the virus. There is no technology available today in the private sector for commercial use for checking the virus. आप क्या चेक कर रहे हो? वायरस के टारगेटेड जीन्स. आपने पिक्चरें देखी होंगी जहाँ पे जब एक मर्डर होता है तो मर्डर का जिसका मर्डर होता है वो मर्डरर के बटन, एक उसकी जैकेट का बटन खींच के अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है. फिर पुलिस को वो दिखाई नहीं देता, हीरो आता है, वो बटन निकाल लेता है, फिर पूरी पिक्चर में वो बटन को ढूंढता है और आखिरी में बटन से आइडेंटिफाई करता है कि मर्डरर कौन है. RT-PCR में हम वही कर रहे हैं. हम वायरस के टारगेटेड जीन्स को चेक कर रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं कि इसका जीन उससे जीन से मिलता जुलता है कि नहीं. Therefore, RT-PCR test basically does not tell us virus is alive or dead. It only tells us कि वायरस का वो पर्टिकुलर टारगेटेड जीन जो आप चेक कर रहे हो वो वहाँ प्रेजेंट है कि नहीं है. अगर है तो है. फॉल्स पॉजिटिव होने के चांसेस बहुत कम हैं. फॉल्स नेगेटिव 35% लोगों में हो सकता है. Thank you, sir. So next question we have from Dr. Ayam Jha. 60,000 unit to be taken before or after breakfast? ये तो आप चवन्नी वो निकालो, क्या कहते हैं, 1 रुपए का सिक्का निकालो. हेड आया तो पहले, टेल आया तो बाद में. Doesn't matter how you take it, but we normally prefer it to take it with a cup of milk. Otherwise, doesn't matter. And if you're taking a cup of milk, milk का एक formula है, drink it alone or leave it alone. So therefore, better is to take it with a cup of milk either in the morning or in the night. Otherwise, doesn't matter how you take it. कुछ लोग तो सीधा अपने मुंह में डाल के ले जाते हैं, कुछ लोग पानी में डाल के ले जाते हैं. But yes, we give it with calcium because milk is calcium. तो उस टाइम पे जितना भी मिल्क में कैल्शियम होगा वो एब्सॉर्ब हो जाएगा. Sure, sir. So next question we have from Dr. Agya Pandey. Is there any relationship between vitamin D3 and calcium? Yes, बिना विटामिन डी के कैल्शियम एब्सॉर्ब ही नहीं होगा हमारी बॉडी के अंदर में. तो इसलिए विटामिन डी के साथ में कैल्शियम का लेना फुल स्ट्रेंथ में लेना बहुत जरूरी है. 1000 से 1500 कैल्शियम लेना बहुत जरूरी है. Okay, sir. And the next question, how long a child of 4 years old और नीरज कुमार जी बोल रहे हैं कि लेक्चर में फनी भी है. वो फनी इसलिए करना पड़ता है, नहीं तो हम अदरवाइज आप सीरियस होते जाएंगे. आप इसमें सीरियस होते जाएंगे, इसलिए थोड़ा बहुत मजाक करना भी जरूरी होता है. Yes, sir. Sir, how long a child of 4 years old needs vitamin D drops, and are there any side effect of prolonged use of vitamin D if taken for 4 years? नहीं, विटामिन डी तो हम पूरी जिंदगी भर के लिए दे रहे हैं. डोज मैंने पहले ही बता दी है. और जिंदगी भर तक विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन से आप सनलाइट तो जिंदगी भर लेते हो ना. आप कहते हो ना द शाइन इज गॉन, इसका मतलब है विटामिन डी. आप कहते हो कि मेरे शरीर का तेज चला गया. तेज इज नथिंग बट विटामिन डी इन माय बॉडी.
Thank you, sir. Next question we have from Dr. Vatsala. Sir, how much sun exposure does the body need to produce sufficient vitamin D by itself? No data, but my formula is formula of A40, 40 दिन 40% 40 मिनट. That's my formula. कि आप 40 मिनट आपको चाहिए एक दिन में सन एक्सपोजर के लिए. Therefore I say lunch, lunch and lunch. अगर आपका लंच टाइम सूर्य के सामने होता है, that's the best thing to do it. So many questions are coming up. We'll take next 3 to 4 questions. We have only 4 minutes left क्योंकि मेरा एक next session है. Sure, sir. So we are taking last 2 questions. Next question from Dr. Anjani Singh. What is recommended dose of vitamin D to small kid? I said same dose, 400 units, 1000 units and 2000 units respectively. Otherwise, always ask your pediatrician to do that. Thank you, sir. Last question we have from Dr. Rajni. Sir, how lactose intolerance people should take vitamin D supplements? विटामिन डी का लैक्टोज इंटॉलरेंस से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका ताल्लुकात तो दूध के साथ में है. दूध मत लीजिए, उसके साथ में यू टेक अदर कैल्शियम सप्लीमेंट्स विद दैट. Thank you so much, sir, for sharing your knowledge. Now I would like to invite our senior colleague, Dr. Anju Bajaj, for official vote of thanks. Thank you, Baljit. I'm audible? Yeah. Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. Today's honorable guest, Padma Shri Dr. K.K. Agarwal and respected Principal Dr. Gyantosh Kumar Jha. It's my privilege to propose vote of thanks on this occasion. I, Dr. Anju Bajaj, on behalf of Atma Ram Sanatan Dharma College, Delhi University, extend a very hearty vote of thanks to Dr. K.K. Agarwal. It was an absolutely honor to have an eminent personality like you with us. The talk was extremely fruitful and knowledgeable for everyone. Thank you, sir, for taking out time to enlighten us on the topic of vitamin D intake during and post-COVID-19 era, so that we can take better care of ourselves during these hard times when health is truly wealth. I also want to thank you, sir, for your services to the society. Truly, doctors like you are the real superhero in the era of pandemic. I also wish to express my gratitude to our principal, Dr. Gyantosh Kumar Jha, for his continuous support and guidance, and for giving opportunity to organize such useful lectures in the pandemic era. I want to give special thanks to Dr. Anjani Singh for organizing such a wonderful lecture by respected Dr. K.K. Agarwal. A big thanks to all the participants for being a part of the webinar. I also express my thanks to convener of the program, Dr. Vinita Tuli and her team for coordinating such a wonderful webinar, and to technical team for smooth running of this program. Thank you so much, sir, and all, and have a good day. Be safe, be healthy. Thank you, sir.